Speaker, Dr. D.K. Sharma, fellow colleagues, and my dear students. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to all of you on behalf of the whole team at IAMR. Today's celebration, our main star attraction are our students. So I take the opportunity to welcome them. It is very important to enhance the confidence level of the students so that they become stage daring and be socializing with the rest of the people that they meet in their life. I assure all the MBA students that they would enjoy the academic environment, teaching environment, and the various co-curricular activities which will be held during their tenure in the college. Efforts will be made to develop the complete personality of the students, both academically as well as in soft skills and all the other management areas, so that they are able to get jobs of their choice in the corporate world. Further, I would like to add many more students are on their way and are going to join us very, very shortly. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, it's my pleasure to introduce the guest of the event of the orientation program, Dr. D.K. Sharma, Director SS Associates. Historically, the management lessons have been derived from armed sources. Dr. D.K. Sharma has 18 years of rich experience in training and development in the Indian Air Force. He imparted training to the staff of Indian Air Force at 17 Terra School, Baroda, and at No. 2 Guided Weapon Training Institute, New Delhi. An academician as par excellence, Dr. D.K. Sharma was always connected to the academics in the field of leadership and behavioral sciences. With his education spectrum converting fields from science and engineering to law to management, he is today a much respected personality, recognized as a human resources and the life skill coach. His competencies today include public speaking, motivation, leadership, team building, managerial effectiveness, communication skills, perception, counseling, and many more. He is particular about sharing his vast experience by delivering guest lectures, seminar at international schools, colleges, companies, associations, privileged events, engineering and professional colleges. He has trained more than 10,000 students, adults,
armed forces personnel for the last 10 years on various subjects of personality development through his seminars, lectures, and public programs. He works with many organizations in the area of stress management and also provide counseling services. Striking a fine balance between spirituality and reality, he can let the trainee participant focus on the subject matter on discussion. Apart from the Air Force career, Dr. D.K. Sharma has been a faculty of management studies to Sikkim Manipal University, Institute of Material Management, Baroda chapter, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, and Amity University, Noida. He has also served as a government labor officer in Delhi University, Delhi government. Presently, he is a director of SS Associate, a law firm, and visiting professor of Amity University. Now, sir, I request you for your valuable thoughts for our students. Can anybody tell clearly why he or she wanted to do MBA? Can anybody tell why he or she? Yes, please. Sir, because I wanted to go in the corporate world. Without the MBA, nobody can go to corporate world. Sir, we can go, but sir, degree is more important than that. Who says? And experience. So that second thing comes with degree only. No sir, experience. Knowledge. Anyhow, but no problem. At least उन्होंने बोलने की कोशिश की. I try to speak with you. Is there anybody who cannot understand Hindi? हिंदी हमारी माँ है, अंग्रेजी मौसी. तो यदि माँ का साथ मिले तो मौसी के पास तो जब जाए जब माँ ना हो. तो मेरा बेहतर प्रयास होगा आपसे संवाद स्थापित करने के लिए कि मैं मातृभाषा में आपसे बात करूं. लेकिन क्योंकि जिस तरह इस बच्चे ने बताया कि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो वहां अगर हमें सफल होना है तो किस भाषा पे अधिकार प्राप्त होना चाहिए? अंग्रेजी. व्हाट माय पॉइंट? संवाद स्थापित करने के लिए, भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हिंदी उचित है. लेकिन यदि जीवन में सफल होना है तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का समावेश भी आवश्यक है. ठीक है. So with the help of some of the PPTs and with the help of whatsoever I have learned in my life, I will share those experiences with you, and I feel that will help you out. So first of all, as I have studied in Air Force, तो Air Force के बाहर में कोई गया है कभी? Air Force स्टेशन विजिट किया है? आर्मी स्टेशन, Air Force स्टेशन, कोई भी? उसके बाहर सबसे पहले लिखा होता है Who are you? Prove your identity. अगर आप प्रूव कर पाते हैं, then only you can enter inside. Same way कंपनियों के बाहर लिखा नहीं होता, but prove yourself. If you could prove yourself, you can enter into the company or the organization. It's not your name which is you identified. What the qualification you got, what the experience you got, what the skill you got. आजकल मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक नए पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि इस बच्चे ने बीटेक कर लिया, इस बच्चे ने एमबीए कर लिया, इसकी कहीं नौकरी लगवा दो. एंड आई से, मैं नहीं पूछता उनसे तुमने किया क्या है, मैं ये पूछता हूँ तुम्हें आता क्या है. And 99% of the students are not able to tell me after doing the BTech and MBA उन्हें आता क्या है, बस लगवा दो. So here after you are beginning your journey, आप ये ध्यान रखिएगा कि डिग्री तो मिल ही जाएगी किसी न किसी तरह, लेकिन इस 2 साल में आप कुछ ऐसा सीखें कि 2 साल बाद जब आपसे कोई पूछे कि आपको आता क्या है, वो आता क्या है आपको जीवन में सफल बनाएगा, ना कि डिग्री. Make your identity in such a way that you should be known by your work. I'll give you an example of Abraham Lincoln. उनके पिताजी जूते बनाते थे. He was a cobbler. और अब्राहम लिंकन की हम हिस्ट्री से, अगर आप लाइफ हिस्ट्री से हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो बहुत उनके प्रेरणादायक है. और फाइनली वो विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो उसके राष्ट्रपति बनते. लेकिन कुछ लोगों को 2 तरीके से आदमी बड़ा बनता है. एक तो बड़ा होने के काम करे, दूसरा दूसरे को नीचा कराए ताकि वो बड़ा दिखे. तो जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गए और अपना कांग्रेस में बोलने लगे, वहां पे जब वो बीच में बोल रहे थे तो उनका ध्यान भंग करने के लिए एक ने कहा कि आप वही है ना जिनके पिताजी जूते बनाते हैं, बेइज्जती करने के लिए उनकी समथिंग लाइक. लेकिन हम जैसा कोई तो शायद
बेइज्जत हो जाता है या नर्वस हो जाता है, लेकिन वो तो अब्राहम लिंकन थे। उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने अपना भाषण रोका और उनका जी हाँ मैं उन्हीं का लड़का हूँ और मैं भी जूते बनाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या आपके जूते में कोई खोट है, कोई कमी है? जूता फट सकता है लेकिन मेरे पिता की सी हुई सिलाई नहीं फट सकती, और अगर फट गई हो तो मैं कर दूंगा उस सिलाई को आपकी को, परंतु मुझे अपने पिता के जूते बनाने की कला पर गर्व है। उन्हें जो आता था उस पर उन्हें गर्व था। आप पे जो आता होगा उस पे आपको गर्व होगा और आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को गर्व होगा। डिग्री तो रखी रह जाएगी, आपको बताना ना पड़े कि आप एमबीए हो, आपके काम ऐसे हो कि दुनिया को पता पड़ जाए कि ये कोई पढ़ा लिखा है, whether it is MBA, whether it is BTech, BBA or whatsoever you have done. So यहाँ से जो आज आप शुरुआत कर रहे हो, इस 2 साल में एजुकेशन तो लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपके पास में हार्ड स्किल्स, there are 2 type of skills which are required in the outer world to become successful. हार्ड स्किल्स जो डिग्री ग्रुप में आप में आती है, एंड सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आप लर्न करने की कोशिश कीजिए एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो व्हाट इज योर पैशन? क्योंकि जब आप बता नहीं पाए कि आप एमबीए क्यों कर रहे हो, पैशनेटली नहीं कर रहे। 2 चीजें जिंदगी में, शादी और पढ़ाई। या तो उससे करो जिससे प्यार करते हो, या जिससे हो जाए उसे प्यार करने लगो। आपकी शादी अगर उससे हो गई जिससे प्यार करते हो तो अच्छी चलेगी होपफुली, या फिर जिससे हो गई उससे आप प्यार नहीं करते, कहीं और करते हैं, पूरी जिंदगी खराब हो जाने वाली। सेम में पढ़ाई, जानिए पढ़ाई में आने के पहले कि आप इस पढ़ाई में क्यों जा रहे हैं। 4W and 1H, what, when, where, why and how. What is MBA, why MBA, when MBA, from where MBA and how MBA. जब इन क्वेश्चनों का उत्तर लेके आप क्लियर कट आगे चलेंगे तो आप एमबीए को या किसी भी चीज को ढंग से कर पाएंगे, अदरवाइज हाफ हार्टेडली होगा। बीच में ही मैं एक चीज को बताऊं, जैसे कि आप आंसर दीजिएगा इसका जो मैं पूछ रहा हूँ। हमारे 32 दांत हैं, तो हमें एक टुकड़े को कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार एटलीस्ट। लेकिन क्या हम चबाते हैं? तो हम खाना कैसा खा रहे हैं? बीच का सा। जबकि हम जानते हैं सिर्फ खाना चबाने से, खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं जिंदगी भर, कोई बीमारी नहीं लगेगी हमें। लेकिन नहीं, हम उसको करते हैं। हमें सबको पता है आजकल रियो में ओलंपिक्स चल रहे हैं, आजकल खेल में बहुत सारा पैसा है, हम खेल सकते हैं, खेलने में तो हमारा मन भी लगता है, लेकिन हम खेलते कैसा है? पिच करना, कभी खेलिए कभी नहीं खेलिए, समथिंग लाइक। हम सबको पता है कि पढ़ाई अच्छी करने से अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा कैरियर बनता है, लेकिन उसके बावजूद हम पढ़ाई कैसी करते हैं? पिच की से। तो हम आदमी कैसे बनते जा रहे हैं? प्लीज आंसर। You need to work on that. ये तो कोई और नहीं बना रहा है, इसके लिए you cannot blame anyone. ये तो बेसिक चीजें थी, खेलना, खाना, पढ़ना, जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे उनको तो हम अपनी तरफ से कर लें। गीता इज द बेस्ट मैनेजमेंट बुक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, और उसमें भी है आप कर्म कीजिए, फल अपने आप मिलेगा, बट नेचुरल। आपने हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, सॉल्यूशंस किए होंगे, यदि फॉर्मूला सही लगा हो तो उत्तर निकलता है। आप एमबीए कर लेते हो, डिग्री ले लेते हो, नौकरी नहीं मिलती, बिकॉज सही फॉर्मूला नहीं था। डिग्री वाज नॉट द वे टू गेट द जॉब, इट वाज द स्किल व्हिच यू कुड लर्न और व्हिच यू डिड नॉट लर्न इन योर प्रोसेस। द नेक्स्ट, identify yourself with your passions and aspirations which are much greater than your career track. आपने हर्षा भोगले का नाम सुना है? He is a IIM graduate and he is a IITian also. लेकिन काम क्या कर रहा है? He is a cricket commentator. उसका पैशन वो है, लेकिन वो पैशन पे भी पहुंचा एजुकेशन पूरी करके। Then there is another fellow, चेतन भगत. He is also IIM graduate and IITian. काम क्या कर रहा है? किताबें लिख रहा है। Got my point? So it is not necessary कि अब आपने MBA की डिग्री ले लिया, कुछ और चीज कर लिया तो वही करना है। Find out your passion. वरना क्या चाहते हो? वो तो एक ट्रैक है। एजुकेशन आपको मैच्योरिटी लाती है, आपके दिमाग को सोचने समझने की क्षमता को बेहतर करती है। एजुकेशन वो MBA भी हो सकती है, बीटेक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप तो 70 तरह की एजुकेशन है। डॉक्टर साहब के टाइम में, हमारे टाइम में दो ही, अगर किसी के बच्चे हैं दो, तो एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और इंजीनियरिंग के भी इतने कॉलेज नहीं थे, कोई एक आध, कुछ IIT, एक आध MNR, इलाहाबाद यूपी में, और अदरवाइज दे वर नॉट देयर। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो
एजुकेशन को आप डिग्री को आप ये मत समझिए कि नौकरी दिलाएगी। ये अपने कॉन्सेप्ट अगर लेके आए हुए हैं एमबीए करने तो ये निकाल दीजिए। डिग्री नौकरी नहीं दिलाती, उस डिग्री के दौरान जो आपकी स्किल आप में पैदा होती है, जो मैच्योरिटी आप में पैदा होती है, वो आपको नौकरी दिलाएगी। सो ये 2 साल आप पूरी तरह से अपने आप को मैच्योर्ड बनाने में और उन सॉफ्ट स्किल्स को सीखने में लगाइए जिसके बेस पे आप सफल होने वाले हैं। Accomplishing anything demands total involvement, 100%. It's not 99 or something like that. सफलता के लिए सच एज यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 80% अलाउ है किसी के हाई स्कूल में 10th में। ओके, आप खड़े हुए थोड़ा। You scored how much? In 10th 79 and 12th 81.85. 82 मानते हैं उनको। तो जो या इनसे भी ऊपर है किसी के मार्क्स हाई स्कूल और इंटर में, इनसे भी ऊपर है नो वन। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, डोंट टेक इट वर्बली, बिल्कुल दिल पे भावना पे लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसको समझा रहा हूँ। 79% इनके आए हाई स्कूल में, तो 21% आप हाई स्कूल में फेल थी, नहीं थी। 79% ही तो पास थी, 21% तो फेल थी। तो एक हिस्सा हाई स्कूल का रह गया अधूरा सा। फिर इंटर में आपके 82% थे, हाईएस्ट को ले रहा हूं मैं, जो लोअर है 50-55% वाले वो सोच ले वो कितने परसेंट फेल थे। तो जब 82% थे आपके, 18% आप 12th में फेल थे, तो कुल मिला के आप 40% फेल हो गए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में हाउ मच इज स्कोर? 79 अगेन, तो 21% वहां पे, यानी ग्रेजुएशन तक आते आते 60% वो फेल हो गई। जो हाईएस्ट चल रहा है 80%, जिस पे हमें गर्व करना चाहिए, वो भी बंदा कुछ हिस्सा कमजोर चलते चले जा रहा है। और नौकरी के आप 60% से गुजारा कर लेंगे कि मुझे 60% नौकरी दे दो, 70% नौकरी दे दो, 40% नौकरी दे दो। नौकरी तो 100% मिली है ना, तो गिव योर 100%। इफ यू आर रेडी टू गिव योर, मुझे एक आदमी भारतवर्ष में, यहाँ नहीं भारतवर्ष में, जिसके केवल ग्रेजुएशन तक 90% मार्क्स हों और उसकी 90,000 की नौकरी ना हो, तो मुझे बताइए, मैं दूंगा। एक आदमी, कोई एक आदमी एक और। तो वंस दिस इज द गारंटी, 90% का मतलब ये नहीं है कि आप चोरी से किसी तरह नंबर ले आए। आई वांटेड टू से कि उसे वो सब्जेक्ट आता है। यू विल बिकम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप में से कितने लोग एमबीए के बाद नौकरी करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बैठ जाइए आप बेटा। एमबीए के बाद कितने लोग प्लेसमेंट चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज। यस, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। एमबीए तो नौकरी की डिग्री है ही। एमबीए का मतलब क्या है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपना बिजनेस खोलो, उसके मास्टर आप बनो, लेकिन आप तो नौकरी करना चाहते हो। क्लियर है फंडास? यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो वो जो भी कोई डिग्री है, जो भी कोई नॉलेज आप ले रहे हो, दैट विल हेल्प यू आउट इन ए बेटर वे। गलत नहीं है एमबीए करके नौकरी करना, लेकिन इट इज बेटर। आज मोदी जी भी कह रहे हैं, सारी इतनी नौकरियां कहां से लाए हो? हम हो तो जा रहे हैं खूब लंबी संख्या में, बढ़ते जा रहे हैं, 125 करोड़ हो गए, नौकरियां तो आएंगी नहीं। सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू प्रोवाइड, दूसरों को नौकरी दो। तुम ऐसा बिजनेस करो कि अपना तो करो ही करो, दूसरों के लिए भी नौकरियां क्रिएट करो। फॉर दैट यू रिक्वायर 100% इन्वॉल्वमेंट। कुछ भी एक चीज सोच लो और उसके पीछे लगो। यू आर गोइंग टू Sir, first we learn from corporate, then we study our business. ये एमबीए में क्या लर्न कर रहे हो? कॉर्पोरेट क्या सिखाया? ये एमबीए में सारी चीजें उन कॉर्पोरेटर ने बुक लिख दी, बुक टीचर आपको समझा रहा था। अगर आपने इन 2 साल लर्न नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो केवल हमको ये बताया जाएगा, एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, अपनी स्किल्स में डेवलप जो बताया जाएगा उसके बारे में आपको अभी कैसे पता? सर वहाँ तो हम लोग उधर प्रैक्टिकली कंप्यूटर में 4+5 हम 10 कर दें अपने प्रोग्राम से, अपने आप 9 कर लेगा, वो 9 कर लेगा? नहीं कर सकता है। तो आपने अपने कंप्यूटर में ये चीजें भरी क्यों हुई है? निकालो, इन्हीं को निकालने आया हूँ।